Welcome guys in lecture number 2, and in this lecture we study about some topics which you I think already learns in the physics. Okay, so let us start. The first topic of the day is physical quantity. You know, the value of physical quantity is always equal to a definite numerical value and a definite unit. It is necessary to describe the physical quantity with the least possible unit. Now what is this? This is the main battle tank of our Indian army. The name is T-90 Bhishma battle tank. Now someone asks you, what is the mass of this main battle tank? Then you say that 10,000. Then only 10,000, it carries no meaning. But if you add kilogram after 10,000, then it carries a meaning. 10,000 kilogram, it indicates the mass of this main battle tank, Bhishma battle tank. Clear? Okay. Another example, these two guys, you know already, Virat Kohli and Dhoni. Someone asks you what is the height of these two guys. See, assume that the height of both the guys are same. Okay. Then someone asks me, sir, write 5.8. Then what is the meaning of 5.8? Just 5.8 carries no meaning. But if you say me 5.8 foot, it carries height. So any of the numerical value has not a significant meaning, but after numerical value you put a unit that it carries a physical quantity. Okay? See, there are various system of units for physical measurement which were developed. Number 1, FPS system. F means foot, P means pound, and S means second. Number 2, CGS system. C means centimeter, G means gram, and S means second. Number 3, MKS, meter, kilogram, and second. And fourth one, which is the latest system, which is SI unit system. The French name of this SI unit system is Le Système International de Units. Again repeat, Le Système International de Units. Clear? Okay. Let us guys start some basic physical quantities which are accepted in the SI unit system. Okay. I think you already study about these 7 basic physical quantity in the physics. Let us revise it. And the number 1 is length. Okay. And you know, symbol of length is small l. Okay. Mass symbol is small m. Time symbol is small t. Electric current symbol is capital I. Thermodynamic temperature symbol is capital T. Amount of substance symbol is N. Okay, number. And luminous intensity symbol is IV. Clear? Now what is the symbol of SI units? Okay, of length. We can say meter. Okay. Now what is the symbol of SI units of mass? We can say that it is kg, not capital, small kg. Okay, kilogram. Now SI units, symbol of SI units of time is second. Okay, clear? Second. And now for electric current, ampere, capital A. Now for thermodynamic temperature, Kelvin, capital K. And for the amount of substance, mole. Mole. And for the luminous intensity, CB, means candela. तो शायद आप ये जो 7 तो बेसिक यूनिट्स है उनके कौन से सिंबल्स है, फिर उसके एसआई यूनिट्स के सिंबल्स क्या है, ये आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं. ओके, एक बार नोट कर लो, बराबर अपने माइंड में लॉक कर दो. ठीक है.
Okay students, now let us start prefix used in the SI system. I think you already learned this topic in physics, but now in the chemistry just we revised here. Okay, now multiple is 10 raised to minus 1, then which prefix is used here? You all the people know that DECI, DECI, and the symbol is small d. And for 10 raised to minus 2 multiple, अगर हमारे पास 10 raised to minus 2 पावर है तो क्या यूज करेंगे? सेंटी, CENTI, and the symbol is C. For 10 raised to minus 3 milli, symbol is small m. Clear? For 10 raised to minus 6 milli के बाद आएगा MICRO, micro, the symbol is nu. 10 raised to minus 9 nano, NaNO, nano नहीं nano. Okay, symbol is small n. For 10 raised to minus 12 PICO, pico, the symbol is small p. Okay, सारे ही सिंबल जो है ना स्मॉल में है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको. 10 raised to minus 15 we use the prefix femto and the symbol is small f. आपको मालूम होगा 10 raised to minus 18 के लिए क्या है? एट्टो, the symbol is small a. उसके बाद जेट्टो और उसका स्पेलिंग सिंबल है स्मॉल z. उसके बाद है योक्टो, the symbol is small y. क्लियर? तो 10 raised to की माइनस पावर जब होती थी, ठीक है, 10 raised to minus 1 है, 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 3, तो 10 raised to minus पावर जब है, ओके, for 10 raised to minus n पावर हमने ये पूरे प्रीफिक्स यूज किए. अब बन जा रहा है मल्टीपल तो है ही, लेकिन वहां 10 raised to plus n पावर के लिए हम काम करेंगे, ठीक है? तो नंबर 1 क्या है? 10 raised to 1, उसको हम क्या यूज करते हैं? डेका, डेका. और इनका सिंबल क्या है? डी. अगर मान लो कि स्मॉल डी लिख दिया तो ये तो डेसी के लिए भी था, इसलिए इसको अलग करने के लिए हम लिखते हैं डी ए. क्लियर? उसके बाद आ रहा है हेक्टा, स्मॉल एच. उसके बाद आ रहा है किलो, स्मॉल के. अब जो सारे जो सिंबल्स आएंगे प्रीफिक्स के वो सभी कैपिटल लेटर्स में आने वाले हैं. ओके, याद रखना. 10 raised to minus 10 raised to 6 मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा. 10 raised to 21 के लिए जेटा, और 10 raised to 24 के लिए लास्ट वन इज योटा. इनके सिंबल अगर लिखेंगे तो कैपिटल के, यहाँ स्मॉल के, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल ई, कैपिटल जेड एंड कैपिटल वाई. ओके, ये अगर आप सभी मल्टीपल्स को बराबर याद रखेंगे तो कभी भी जब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स में एक वैल्यूज को दूसरी वैल्यू में ट्रांसफर करने के लिए इस प्रीफिक्स का बहुत ही यूज होता है. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और बराबर इसको माइंड में लॉक कर दो, ठीक है? ओके बच्चे लोग, जो अभी हमने जो ये प्रीफिक्स पढ़े हैं कुछ मल्टीपल्स के लिए, उसका हम कुछ कन्वर्जन करना चाहते हैं कि एक यूनिट है उसमें से दूसरे यूनिट में आपको जाना है, ठीक है? तो किस तरह हम जा पाएंगे, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन. ओके, नंबर 1, इफ आई हैव 10 femtometer then question is equal to nanometer. ओके, अब क्या करना है आपको? ये जो 10 femtometer है ना उसको डायरेक्ट लिख देना है 10. अपन ये पढ़े कि फेम्टो के लिए कौन सा प्रीफिक्स था? फेम्टो था तब वो एक प्रीफिक्स है ना, तो उसके लिए मल्टीपल कौन सा था? मेरे पास था 10 raised to minus 15 पावर, याद है ना?
ये मीटर तो है ही, तो मैंने यहाँ लिख दिया मीटर। अब क्या करना है, इस साइड कोई भी चीज बाकी रहने देनी नहीं है, यहाँ कुछ भी बाकी रहना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, जो ये डैश है ना अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स, उसको निकाल देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ n। अब n जब होगा इट मीन क्या होता है, नैनो, तो 10⁻⁹ मीटर तो है ही। अब दोनों ही साइड क्या हो गया, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, और ये जो 10⁻⁹ है उसको इसके डिवाइडेड कर दो, तो क्या हो जाएगा 10 into 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 10⁻⁹। इक्वल के इस साइड कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कोई भी यूनिट बाकी रहना नहीं चाहिए, ये हमारा गोल है, ठीक है। अब इसको आप आसानी से कर पाओगे, ये 10⁻1 इस यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो क्या करेंगे प्लस -15, और ये जो -9 है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +9। मेरा आंसर क्या आ गया 10⁻⁵। यहाँ लिख देता हूं मैं 10 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁵ नैनोमीटर। नहीं मालूम पड़ा क्या, पक्का। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं अभी। 20 नैनोमीटर इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स। अब कितने किलोमीटर से वो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, चलो समझते हैं। पहले तो क्या लिखना है अपन को 20 मल्टीप्लाई विथ, अब नैनो है ना n, तो नैनो के लिए कौन सा सिंबल है 10⁻⁹ m तो है मीटर। अब इस इक्वल टू के इस साइड हमें कुछ भी रहना देना नहीं है, लेकिन पहले लिखेंगे किलो के लिए क्या आता है, किलो के लिए आता है 10⁻³ इनटू मीटर तो है। अब दोनों ही साइड मीटर है, वो कैंसिल हो जाएंगे, और 10⁻³ है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा 20 into 10⁻⁹ divided by 10⁻³ and so what is answer 20 into 10⁻⁹। अब ये 10⁻³ है, ऊपर जाने से क्या हो जाएगा -3, तो आंसर मेरा आ जाएगा 20 into 10⁻⁻12। क्लियर, इज वेरी एंड वेरी इजी कन्वर्जन। अभी भी आपको नहीं आता है, कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं मैं। नंबर 3, 500 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच नैनोग्राम। चलो अब किलोग्राम को किलोमीटर को मैं नैनोमीटर में ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे अपन, पहले लिखेंगे आसानी से 500 इनटू, अब किलो के लिए क्या होता है 10⁻³ मीटर तो है ही यहाँ, इस और क्या करेंगे अपन फिल इन द ब्लैंक्स को निकाल दिया, नैनो के लिए क्या लिख दिया 10⁻⁹ और मीटर मीटर दोनों ही और कैंसिल हो चुके हैं, तो अब क्या हो जाएगा 10⁻⁹ यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 500 इनटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁹। अब ये जो 10⁻⁹ पावर है ऊपर जाने से क्या हो जाएगा प्लस, तो 500 इनटू 10⁻³ प्लस 9, so my answer is 500 into 10⁻12। क्लियर, बहुत ही आसान है, आपको ये बराबर समझना पड़ेगा ही, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे घर पर तो आसानी से आप समझ पाएंगे। ओके, लास्ट वन नंबर 4, चलो बताओ कोई भी एक, मैं लिख रहा हूं यहां 0.15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलो कौन सा मीटर लिख दूं मैं यहाँ, सेंटीमीटर को किलोमीटर में अपन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, km। ओके, नाउ स्टार्ट। 0.15 तो मेरे पास वैल्यू है ही, और c सेंटी के लिए कौन सा, सेंटी तो प्रीफिक्स है ना, तो उसके लिए मल्टीपल कौन सा था, मल्टीपल था 10⁻²। मीटर तो है ही यहाँ, इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स को निकाल दिया। अब किलो के लिए क्या है 10⁻³ और यहाँ मीटर तो है, मीटर कैंसिल, तो 0.15 into 10⁻² डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ला दो
10⁻3। अब ये जो 10⁻3 पॉजिटिव है पावर, ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 0.15 इंटू 10⁻2 मेरा आंसर आ जाएगा 0.15 इंटू 10⁻5। दिस इज माय आंसर। तो आपको ध्यान एक ही बात का रखना है, इस और जो भी है उसको खाली कर देना है और उसको इसके डिवाइड में डाल देने का है। ओके, आसान तरीका है, शांति से इसको आराम से नोटबुक में लिख लो। क्लियर? After completing how to convert a unit into another unit, let us start a new topic, and the name of the topic is the difference between mass and weight. Okay? Now what is mass? Mass of a substance is the amount of matter present in it. मेरा mass क्या होगा? तो मेरे में जो भी matter present है उनकी जो value है उसी को बोलते हैं mass। लेकिन अगर मेरा weight बोलना है तो उसकी डेफिनेशन अलग है। While weight is the force exerted by gravity of an object, मेरे पर जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स एक्सर्टेड होता है उस फोर्स को मैं बताता हूं weight। ठीक है? तो आपका मास जो है वो कहीं भी जगह पर जाएंगे आप लोग मान लो कि अमेरिका में जाएंगे तो आपका मास तो फिक्स ही रहेगा। अब आप मान लो कि आप चाइना जाएंगे तो आपका मास तो फिक्स ही रहेगा ना। पंजाब जाएंगे, बठिंडा जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, ओके ठीक है, कहाँ जाएंगे, कोलकाता चले जाओ यार, बंबई चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, आपका जो मास है वो फिक्स रहेगा। लेकिन होगा क्या, अब अमेरिका जाएंगे तो वहां ग्रेविटी कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इंडिया। अब चाइना जाएंगे तो एज कंपेयर टू इंडिया वहां ग्रेविटी बढ़ भी सकता है और ग्रेविटी कम भी हो सकता है। तो जितना ग्रेविटी में प्लस और माइनस होगा उतना ही जो आपके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है वो भी बदल जाएगा ना। तो जितना फोर्स बदल जाएगा उतना आपका वेट भी बदल जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। इन शॉर्ट मैं ये बताऊंगा आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कहीं भी जाओ फिक्स रहेगा और किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। क्लियर? लेबोरेटरी में किसी ऑब्जेक्ट का आपको मास वेरी एक्यूरेटली फाइंड करना है तो इसके लिए मैंने आपको एक फिगर बताई है, एनालिटिकल बैलेंस, उसको यूज करते हैं। ठीक है? Okay, after completing the difference between mass and weight, let us start a new topic, in which is the volume. And you know, volume is not a basic physical quantity; it is the basic. It is the derived physical quantity, and its unit also say derived unit. आपको मालूम होगा हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, आपको मालूम होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब लेंथ का यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट मीटर। ब्रेड्थ का भी वही होगा ना, मीटर, और हाइट का भी क्या होगा? मीटर। तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब। लेकिन ये जो मीटर क्यूब है ना वो कौन सा यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि वो बेसिक यूनिट नहीं है। क्लियर? और इन द लेबोरेटरी स्मॉलर वॉल्यूम्स आर ऑफन डिनोट इन सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। लेबोरेटरीज में जहां वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, कम हम लेते हैं, वहां वॉल्यूम को इन द टर्म ऑफ सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में हम यूज करते हैं। क्लियर? उसके बाद जा रहे हैं कॉमन यूनिट इज लीटर। आप यार कभी दूध लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? 2 लीटर दूध दे दो भैया। ठीक है? कभी बोला आपने 0.5 मीटर क्यूब दूध देना भैया? अरे नहीं देगा, वो टेंशन में आ जाएगा। लेकिन ये वॉल्यूम का ऐसा यूनिट नहीं है। और भी एक हम लीटर का छोटा यूनिट यूज करते हैं और वो क्या है? मिली। क्लियर? ओके, लेट अस स्टार्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन
बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आपको ये जेडब्ल्यू और नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। आपको मालूम होगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली। ओके, अब ये आपको मालूम हो क्या 1 मिली इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। आपको ये मालूम है क्या? नहीं मालूम है क्या? चलो लगता हूँ यहाँ, बट अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक क्यूब है, मान लो कि मेरे पास एक क्यूब है, इस क्यूब की ये जो लेंथ है वह क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये क्यूब है इसीलिए इनकी ब्रेथ भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, इनकी हाइट भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो इनका जो ये वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही 1 सेंटीमीटर है, इसलिए उनका वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 1 सेंटीमीटर का एक ये क्यूब है, इसमें अगर मान लो कि मैं कोई लिक्विड डालता हूं तो उस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा 1 मिली। इसीलिए जहां भी 1 मिली होता है उसकी जगह पर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह मैं कुछ इस तरह लिख पाऊंगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ यू कैन राइट दिस 10 सेंटीमीटर into 10 सेंटीमीटर into 10 सेंटीमीटर। ओके, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। 10 into 10 100 into 10 1000। क्लियर, सेंटीमीटर into सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर into सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं यहाँ। अब देखिए 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। आप लोग बुक में ट्राई कर लेना, यही आएगा ना। 10 सेंटीमीटर की जगह पर मान लो कि मुझे डेसीमीटर लिखना है तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो पुट द वैल्यूज इन प्लेस ऑफ 10 सेंटीमीटर, पुट 1 डेसीमीटर। तो क्या आ जाएगा आंसर 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर इनटू 1 डेसीमीटर इनटू 1 डेसीमीटर। सो माय आंसर इज 1 लीटर is equal to 1 डेसीमीटर क्यूब। ये बहुत ही बड़ा कन्वर्जन है, आपको ये बराबर याद रखना है। यह भी आपको याद रखना है, यह भी याद रखना है और यह भी याद रखना है। You must remember all this conversion. 1 milli is equal to 1000 milli. Clear? But 1 milli is equal to 1 सेंटीमीटर क्यूब। कभी क्या होता है कि जब जेडब्ल्यू और नीट में जब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे लोग, तब यहाँ कुछ इस तरह भी दिया जाता है 1 सीसी। 1 सीसी, सीसी का मीनिंग क्या होता है? सी का मीनिंग क्या होता है? सी माने सेंटी और सेंटीमीटर, और ये दूसरा सी माने क्या होता है? क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब उसकी जगह पर ये भी यूज करते हैं सीसी। मान लो कि 200 सीसी ऐसा लिखा है तो उसकी जगह पर हम लोग क्या पढ़ पाएंगे 200 सेंटीमीटर क्यूब। उसका और एक मीनिंग क्या लेंगे 200 मिली। क्लियर, तो इस तरह के कन्वर्जन आपको बराबर याद रखने होंगे। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, आप आसानी से इसको याद रख भी पाएंगे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो, लेकिन पहले इसको बुक में लिख दो। ओके, और एक बात याद रखना बच्चे लोग, जब हम लैब्स में जाते हैं तो लैब्स में कोई लिक्विड का मेजरमेंट करना है, उसका वॉल्यूम मेजरमेंट करना है, तो इसके लिए हम लोग ब्यूरेट, पिपेट, मेजरिंग फ्लास्क और मेजरिंग सिलेंडर का यूज करते हैं, जिनकी फिगर मैंने यहाँ आपको दिखाई है। क्लियर? ओके स्टूडेंट, नाउ द थर्ड derived physical quantity is the density. You know the formula of density, I think you already know. Okay, the formula of the density is mass divided by volume. If we take the SI unit of mass in kilogram and SI unit of volume in meter cube, what is the SI unit of density? बोले तो kilogram per meter cube. Okay, but someone used unit of mass gram, okay, and unit of volume
used by someone is centimeter cube. Then what is the smaller unit of the density? Gram per centimeter cube. Clear? Okay, it is very easy. Okay, इसके जो क्वेश्चन है ना बहुत पूछे जाते हैं नहीं, लेकिन इसका यूनिट भी याद रखना जरूरी है कि जो डेंसिटी का ऐसा यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और उसका जो छोटा यूनिट है वह है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको याद होगा हमने आगे ही पढ़ा था सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर हम क्या लिख पाएंगे? मिली। तो कभी कभार नहीं, लेकिन ज्यादातर यही आता है, ग्राम पर मिली भी देते हैं, लेकिन यह ऐसा यूनिट है नहीं। क्लियर? थोड़ा याद रखना। नाउ fourth number physical quantity, which is the main physical quantity, is the length. Okay, ऐसा यूनिट आपको मालूम है मीटर। Now we are going to learn definition of 1 meter. What is the definition? The distance traveled by light in vacuum. जब हम वैक्यूम में जाते हैं तो वैक्यूम में लाइट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितना, कितने सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? तो the distance traveled by light in vacuum in time period of 1 divided by 299792458 सेकंड। इतनी सेकंड में, कितनी सेकंड में? एक सेकंड का कितना पार्ट है? 1 डिवाइडेड बाय 299792458। इतनी कम सेकंड में लाइट ने वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस डिस्टेंस को ही बोलते हैं 1 मीटर। ओके, क्लियर? नाउ प्लेटिनम एंड इरिडियम, PTIR का मीनिंग होता है, PT माने प्लेटिनम और IR का मीनिंग होता है इरिडियम। इस दोनों ही मेटल का मिक्सिंग कर कर हम बनाते हैं एक एलॉय, और इस एलॉय का एक छोटा सा बार होता है। इस बार को हम स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। 1 मीटर का कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस तो हमारे पास होना चाहिए ना। उस स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए प्लेटिनम और इरिडियम से बना हुआ हम बार यूज करते हैं। Why we use this platinum and iridium? Because this PTIR alloy is highly resistant to chemical attack and its mass and length does not change for a long time. उनकी लेंथ जो है वो 1 मीटर इतनी रखी है तो 1 मीटर ही रहेगी लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, उनके ऊपर टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये सभी बाबतें जो है वो एक बार नोट में लिख दो। क्लियर? Okay student, now let us start a new, and the last topic is about the temperature. You already know that the SI unit of the temperature is Kelvin, but this temperature is also measured into another units, and which is degree centigrade and degree Fahrenheit. And here one, the relation between these centigrade and Fahrenheit is given, and the relation between the Kelvin and degree centigrade is given. Degree Fahrenheit is equal to 9/5 into degree centigrade plus 32, and Kelvin is equal to degree centigrade plus 273.15, but generally we used here Kelvin is equal to degree centigrade plus 273. One should be noted that the negative value is possible in the degree centigrade scale, but negative value in Kelvin scale is not possible on the earth. Again I repeat, negative value in Celsius scale is possible, whereas negative value in Kelvin scale is not possible on the earth. Okay, let us now done some numericals by the uses of this conversation. 25 degrees Celsius is equal to how much Fahrenheit? Let us put the values in this formula. Degree Fahrenheit is equal to 9/5 into 25 plus 32. Okay, 5 5s are 25 and 9 into 5 is equal to 45 plus 32. So my answer is 77 degree Fahrenheit. Okay, this is the answer. Next, 41 Fahrenheit is equal to how much centigrade? Then put the value in this formula.
41 is equal to 9/5 degree centigrade plus 32. Okay, so 9/5 degree centigrade is equal to 41 minus 32. We get 9, and so degree centigrade is equal to 9 cancel. So answer is 5 degree centigrade. It is a very easy conversion to Fahrenheit to Celsius and Celsius to Fahrenheit. Now next, third one is 5 Kelvin is equal to how much degree centigrade. Then put the values in the formula. Kelvin is equal to degree centigrade plus 273. So degree centigrade is equal to Kelvin minus 273. Put the values. 5 minus 273. So answer is minus 268 degree centigrade. Okay, see here, negative value in Celsius scale is possible, whereas negative value in Kelvin's scale is not possible. And here is the last example. 25 centigrade is equal to how much Kelvin? Then put the values. Kelvin is equal to 25 plus 273, and one should get 1289 Kelvin. Okay, so these are the very easy formula. Okay, and the easy and very easy this conversation you can done by yourself also. Okay, ये जो सारी पूरी theories और जो conversion है उसको अपनी नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरीके से लिख दीजिए. ओके, तो आज का हम ये जो लेक्चर है वो यहाँ कंप्लीट करते हैं. बाय बाय.